This is one of those rare weeks when we got to drive two totally new cars, and that too from German luxury car makers. One was obviously the BMW 2 Series, जिसकी स्टोरी हम आपको दिखाएंगे, and other is this, the Audi Q2. 3, 2, 1, and go! Audi Q2 is a unique car which is coming in a unique segment. It belongs to a series which is Audi's SUV family, लेकिन ये family members से अलग लगती है. Then the segment isn't exactly defined either, especially from the usual German luxury car makers. The size might remind you of the T-Roc, but looking at the brand and positioning, you know you would rather compare Q2 with the Mini Coopers, etc. Totally new car for Indian market. Obviously, international market में पहले से मौजूद है, but Indian market में पहली बार आई है. So in this video, we are going to find out where does it stand. Is it a fun car to drive? Does this remind you of all the other Q series cars? And we'll try and answer our famous question, world famous question in India, कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है. So guys, stick around. और इस स्टोरी को शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट, subscribe and like button and share button and other things. Please do that. And let's start this story. सबसे पहले इसके look के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ. Why? Because ये आपको remind तो कराएगी. It has that Q family resemblance, but at the same time very different kind of angular treatment. अगर आप इसके front wheel को देखें या headlamp cluster को देखें या bonnet के ऊपर lines को देखें, they are pretty angular, sharp, trapezoidal, और वही feel आपको यहाँ पर इस दोनों cluster में भी देखने को मिलेगा. Then you have very interesting line, जो shoulder line है, if you see, which I found very interesting, जो मुझे पसंद भी आई. यहाँ से ये shoulder line ऐसे, this triangle वहाँ से निकल कर आती है, and this whole shoulder is like this, और फिर यहाँ पर ये ख़त्म होती है. And this has a bit of quirky element. I like it. And if you look at the rear design, यहाँ पे भी आपको वही feel मिलेगी, similar trapezoidal angles वहाँ पे, यहाँ पे. Overall, I think obviously this reminds you of the typical Q series cars. उसी को अगर आप amplify कर दें other SUVs, लेकिन यहाँ पे size उसको compact लगेगा. Angular और design के हिसाब से आपको ये नया ज़रूर feel होगा. And in this story, let's start with the practical stuff first. Fun part बाद में करते हैं. I'll drive it later. Let's talk about the luggage space, and the space is not bad. Now look at the options. यहाँ पर ये armrest वाले हिस्से को we just collapse, और वो नीचे आपको जगह, in case you have some really long stuff or luggage to carry, यहाँ पर आप बीच में वो रख सकते हैं, maybe your golf kit. Okay. Now seats को मैंने adjust कर दिया अपने हिसाब से. This driver seat is adjusted according to my driving position, और average Indian height के लिए आपको space मैं कहूँगा adequate, not plush, not super spacious, but adequate space आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा. Knee room के हिसाब से thigh support ठीक है, but one thing which I'm not too comfortable with is the back angle. ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको straight लगेगा, which I don't think लंबी दूरी के लिए it's too comfortable. And then there's armrest, cup holders, adequate मैं कहूँगा space और comfort के हिसाब से दो average Indian height passengers के लिए. Back angle मुझे उतना पसंद नहीं आया, and AC vents नदारत, something which I didn't like so much. और इसके अलावा जो central tunnel है वो काफ़ी ऊपर है, so third passenger के लिए मामला काफ़ी tight होगा, but you have enough space to keep one big bottle. So I would say seats, space और comfort के हिसाब से एक बड़ी हैचबैक आपको ये लेगी, स्पेशियस हैचबैक लेगी. फीचर्स में एक दो एंट्री, एक दो एडिशंस हो जाते तो और ज़्यादा ये मज़ेदार होती. और अब फ्रंट सीट पे जाते हैं. लेट्स सी क्या क्या फीचर्स यहाँ पर देखने को मुझे मिल रहे हैं. Okay, Kranti Sambhav reporting from the driver's seat of Audi Q2. यहाँ देखते ही सबसे पहली फील मुझे लग रही है sporty and fresh. Look at the material, look at the color, inserts, flat bottom steering wheel, the kind of controls we have.
पैडल शिफ्टर्स, सो ओवरऑल फील मुझे काफ़ी प्रीमियम और स्पोर्टी लग रही है। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट ऑल दीज थिंग्स थोड़ा सा डिटेल में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ह्यूमिडिटी काफ़ी हो गई है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन एंड देन यू हैव दिस MI कंट्रोल जो मुझे काफ़ी फंक्शनल कंफर्टेबल हमेशा से लगे थे वाइल ड्राइविंग। ऑल्सो आप एल्बो यहाँ पर आराम से रखो एंड you can control the menu, all the functions on this entertainment screen, which is interestingly non-touch screen. If you look at the segment luxury car makers के gadgets का level, वहाँ पे अगर आपको इस तरह का screen मिलता है, so obviously you will be disappointed. Audi वाले criteria से या उसके स्टैंडर्ड से, बिकॉज इवन जो सेगमेंट बहुत सस्ती कार्स हैं वहाँ पे भी आपको बड़े स्क्रीन और ज़्यादा फंक्शन वाले स्क्रीन आपको मिल रहे हैं, टच स्क्रीन मिल रहे हैं, दे आर प्रीटी एडवांस। सो वहाँ पे आई गेस ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट करेगा, बट अदरवाइज अगर आप देखें फील जो है वो आपको काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी सॉलिड फील आएगी एंड टिपिकल Audi की फील आपको बटन्स और जो नॉब्स हैं उसकी क्वालिटी और उसके लेआउट में भी देखने को मिलेगा। देन यू हैव कप होल्डर्स यहाँ पे और USB पॉइंट है, चाबी रखने की जगह। देन यू हैव 12 पॉइंट पावर पॉइंट। इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील जैसे मैंने बताया फ्लैट बॉटम, काफ़ी स्पोर्टी फील है इसमें, कॉम्पैक्ट सी स्टीयरिंग व्हील है इसकी। देन यू हैव डिफरेंट फंक्शंस जो कंट्रोल आप यहाँ पर कर सकते हैं ऑडियो के लिए या फोल्डर्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन के लिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। देन द स्क्रीन विच यू कैन कस्टमाइज अपने व्यू को अपने हिसाब से। इफ़ यू वांट टू सी स्पीडो टैको को अगर आप छोटा देखना चाहते हैं, देन यू हैव ऑल अदर इंफॉर्मेशन लाइक रियल टाइम फ्यूल कंजम्पशन, इंजन टेम्परेचर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है या नहीं, रेंज आपका कितना है एंड अदर इंफॉर्मेशन लाइक डोर ओपन एंड स्टफ। सो वो सारा इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। देन यू हैव पैडल शिफ्टर्स, जो आप स्पोर्ट मोड में जाएंगे तब शायद ज़्यादा मज़ेदार मैं अच्छे तरीके से समझा पाऊँगा या नहीं, आई डोंट नो, बट एटलीस्ट आई हैव फन। वो मैं बाद में करूँगा। इससे पहले फीचर्स और जगह और फंक्शनलिटी की बात कर रहा था, यहाँ एक बड़े बॉटल की जगह आपको डोर पैनल में ज़रूर मिल रही है। सो ओवरऑल ग्रेइश स्पोर्टिश काइंड ऑफ फील। अगेन क्वाट्रो का यहाँ पर बैजिंग आपको देखने को मिलेगा एंड इंडियन कार मार्केट में अब आ रहे हैं और सनरूफ नहीं है, फिर तो बिना सनरूफ की कार को लॉन्च करना आजकल पाप है, पाप। सो दिस सनरूफ ठीक ठाक साइज का मैं कहूँगा कंसिडरिंग द साइज ऑफ दिस कार। सो ओवरऑल ये है कहानी इसके इंटीरियर की। और हाँ, सीट के बारे में बता दूँ, ये मैनुअली आपको एडजस्ट करना होगा, सीट हाइट को भी मैनुअली आप एडजस्ट करेंगे। सो नो पावर्ड सीट इन दिस ट्रिम लेवल ऑफ Audi Q2। ड्राइव करने से पहले एक नज़र इसके इंजन स्पेक्स पर डालें एंड देन विल गो फॉर अ स्पिन। Guys, this is fitted with 2-liter TFSI engine. Power output is around 190 horsepower and 320 Newton meters of torque। और ये फिगर ट्रांसलेट कैसे करती है रोड के ऊपर, अब बारी है उसी को जानने की। बट बिफोर दैट इसके बाकी टेक स्पेक्स के ऊपर एक नज़र डालते हैं। 3, 2, 1 and go! Going to 6,500 RPM and the gear shift is it's not that quick. I won't say it's too quick. It's smooth, no doubt. It eases you into the next gear, but not that crisp because the power, the delivery is actually pretty quick. मजेदार है, फन कार है। Guys, if we talk about the performance of this car, I really enjoy this initial acceleration. मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा था। जो ब्रेकिंग है बहुत अच्छा है, हैंडलिंग, ऑब्वियसली ग्रिप, इन सभी मामलों में इट्स फैंटास्टिक। बहुत ताबड़तोड़ मैं नहीं कहूँगा, स्पेशली गियर शिफ्ट को लेकर भी अगर मैं कहूँ बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ नहीं है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ अ क्यू, दिस इज़ नॉट लाइक सम स्पोर्ट्स कार। और वहाँ पे मुझे लग रहा है कि परफॉर्मेंस आपको काफ़ी इंप्रेसिव लगेगा। एट द सेम टाइम बहुत कार लाइक परफॉर्मेंस भी लगेगा और जो पावर डिलीवरी है वो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। सो इट फील्स पावरफुल, इट फील्स इन कंट्रोल एंड द वे दिस हैंडल्स इज समथिंग व्हिच car enthusiasts, they will enjoy it.
That is something. तो ये चीज इतनी आसानी से करती हुई नजर आ रही है. The kind of grip, it is pretty impressive. So अगर हम उस सवाल का जवाब दें कि बिंदु कहाँ विश्राम करती है, guys, I guess this is a very good balance, you know, performance, enthusiastic car, fun car और practicality के बीच में. Yes, there are few features जो आपको dated लगेंगे, जो इसमें आपको missing रहेगी. अब इंडियन कस्टमर्स पहले से कहीं ज़्यादा पैम्पर्ड हैं, उनको ये सारे फीचर्स मिल चुके हैं, इससे कहीं सस्ती सेगमेंट वाली कार्स में भी. तो वहाँ पे अगर इम्प्रूवमेंट होगा, दैट इज समथिंग which will make this car really fantastic package. But at the same time, I also feel अगर pricing इसकी competitive रही, तो एक बहुत ही अच्छा combination होगा, you know, fun car, enthusiastic driver वाले कार, plus regular usage के लिए जो कार होती है, उसके बीच. So that's what I think. What do you think? Comment section तो है ही. बताइएगा, पूछिएगा, whatever you want to say. I mean, not whatever, but about this car. And try. Like, share, subscribe, and that bell icon. Don't forget to press that. Bye. Yeah.